Hello and welcome to our channel. In this video, we'll be covering CBSE Class 9, Chapter 4, Climate, 3 marks important questions as issued by the CBSE. But before starting with the video, I would like you to like, subscribe and share the video. So please do. So let's start with the video. 3 marks questions. First question, India lies in which climate region? India कौन से climate region में lie करता है? You need to explain this. So in the first line we have mentioned there are many climate regions in the world, and फिर हम India पे आएंगे. That India's climate has characterized of tropical as well as subtropical climate due to the Tropic of Cancer. Tropic of Cancer की वजह से tropical as well as subtropical climate दोनों की characteristics आती हैं. We know that Tropic of Cancer divides India in 2 parts. Therefore इस पे ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. दिस पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री. हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट. रन ऑफ कच्छ इन गुजरात एंड मिजोरम ईस्ट में जो लाई करता है. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया एंड ऑल द रिमेनिंग एरिया लाइंग नॉर्थ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग टू द सब ट्रॉपिकल एरिया. Moving on to the question 2, what is the most remarkable feature of cold weather season over northern plains? Northern plains में remarkable feature बताना है cold weather season का. So the most remarkable feature of cold weather season over northern plain is the inflow of cyclonic disturbance from the west and northwest. Here the low pressure system originates over the Mediterranean Sea and Western Asia, moving towards the Indian Ocean, and they cause much needed winter rains over the plains and snowfall in the mountains as well. So the total amount of winter rainfall is known as Mahavat here, and it is very helpful for the cultivation of rabi crops. You can also write this answer in points as well. For example, you can take this from this to point 1, this to this at point 2, and here to here as point 3. Moving on to the next question. Question number 3, transition period from hot rainy season to dry winter conditions linked with occurrence of cyclonic depressions over Andaman Sea. You need to explain this statement that there is a transition period from hot rainy season to dry winter conditions that is linked with the occurrence of cyclonic depression over the Andaman Sea. And the answer states in the months of October-November, there is a transition period from hot rainy season to dry winter conditions, as there is temperature rises and the sky becomes clear in the monsoon retreat, and early November conditions of the low pressure over the northern area gets transformed to the Bay of Bengal, and there is shift is interlinked with occurrence of cyclonic depression which originate over the Andaman Sea. These cyclones cause heavy and widespread rainfall in the eastern coast of India, and sometimes these tropical cyclones cause destruction as well. Next question, will you interpret the climate conditions as the monsoon retreat? क्या जो climate conditions change है उसको तुम monsoon retreat consider करोगे? The temperature rises and the sky becomes clear in the monsoon retreat. The days are warmer while the nights are cold and pleasant. The land is still moist. The weather becomes oppressive during the day owing to the conditions of high temperature and humidity. And in this question you need to mention the climate conditions of monsoon retreat. Monsoon retreat में climate conditions को define करना था. You can also write this question in points as well. From here to here, point 1, point 2, 3 and 4. So this sums up our 4 points in this question. Next question, question number 5, mention the factors which are responsible for the climate variation in the following. अब इन सब चीज़ों में जो वो factors बताने थे, हमारे place mention है, annual rainfall mention है, तो इसका इन प्लेस पे जो क्लाइमेट कंडीशन हो रही है उनके फैक्टर्स बताना है कि क्या रिस्पॉन्सिबल है. जोधपुर हैज एनुअल रेनफॉल ऑफ 37.7 सेंटीमीटर. श्रीलंका हैज एनुअल रेनफॉल ऑफ 226.7 सेंटीमीटर. मैक्सिमम टेम्परेचर इन द ड्यूरिंग जनवरी इन त्रिवेंद्रम इज 27 डिग्री सेल्सियस वाइज इज -8.7 डिग्री सेल्सियस. इन सब का रीजन बताना है. ऑब्वियस है, क्लाइमेट कंडीशंस के रीजंस बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड मानसून इम्प्लाई? मानसून से क्या मतलब है? मानसून का मीनिंग क्या है ये बताना है. मानसून एक अरेबिक वर्ड मौसम से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब सीजन होता है. देयर इज सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर. क्लाइमेट ऑफ इंडिया टाइप इज मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. ये हम साउथ ईस्ट एशिया में फाइंड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हाउसेज इन राजस्थान हैव थिक वॉल एंड फ्लैट रूफ? राजस्थान के हाउसेज में थिक वॉल और फ्लैट रूफ्स क्यों होती हैं? 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया? फैक्टर्स बताने जो एक एरिया की क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं ये हमने पढ़े हैं, ब्रीफ में पढ़े हैं. यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द नेम्स.
हाउ डज द क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द डिस्टेंस फ्रॉम सी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एरिया। अब सी का जो डिस्टेंस होता है, सी एंड लैंड का जो डिस्टेंस होता है, वो एक पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज द लैटिट्यूड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। अब यहाँ पे लैटिट्यूड जो होती है, लैटिट्यूड कौन सी होती है, ये अर्थ है, ये हमारी लैटिट्यूड्स हैं, एंड दीज वन आर लॉन्गिट्यूड्स। ये हमारे क्लाइमेट कंडीशंस को कैसे अफेक्ट कर रही है, सिर्फ वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज द एल्टीट्यूड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। अब जो हमने शुरू में इनिशियल्स ऑफ द चैप्टर में वी हैव स्टडी लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं एल्टीट्यूड कैसे क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द प्रेशर एंड विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। अब यहाँ पे थर्ड क्या हो गया, प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड विंड्स क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट कर रही हैं। मूविंग ऑन, व्हाट डू यू मीन बाय द कोरोलिसिस फोर्स। अब यहाँ पे पूछा कि कोरोलिसिस फोर्स क्या होती है। नेक्स्ट, व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, यहाँ पे जेट स्ट्रीम्स की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज ITCZ। ITCZ क्या होती है, पहले इसकी फुल फॉर्म बताओगे फिर इसको डिफाइन कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एल नीनो। एल नीनो क्या होता है, पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट होता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है और एल नीनो क्या होता है, उसका रिवर्सल होता है। लाइकवाइज, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 17, बर्स्ट ऑफ मानसून बताना है। बर्स्ट ऑफ मानसून क्या होता है, इसका पीरियड बता दोगे, अराइवल ऑफ द मानसून, ठीक है। और बर्स्ट क्या होता है, सडन। नेक्स्ट, 4 सीजन बताने हैं, इंडिया में कौन से होते हैं। फिर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लू। क्वेश्चन 19, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लू। लू के फीचर्स बताने हैं। क्वेश्चन 20, राइट सम फीचर्स ऑफ मैंगो शावर्स। मैंगो शावर्स के कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही बात है, वो लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज मानेसरम गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। अब मानेसरम में हैवीएस्ट रेनफॉल की होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह उसकी जो लोकेशन है उसको बताओगे, ठीक है। फिर ये बताओगे कि बे ऑफ बंगाल से वो मॉइस्ट एयर लेके आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेन होती है। कहाँ पे, खासी हिल्स में, और खासी हिल्स फोर्स द रेन बियरिंग विंड्स टू रेनफॉल हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, एक्सप्लेन अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट एक्सप्लेन करनी है। अक्टूबर हीट क्या होती है, मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर आर ड्राई मंथ्स। ये हम पॉइंट वाइज चाहो तो पॉइंट वाइज लिख लो, और इफ यू वांट टू राइट इट इन द पैराग्राफ यू कैन राइट इन द पैराग्राफ एज वेल। स्काई कैसा होता है, क्लियर होता है। टेम्परेचर बिगिंस टू राइज, डे बिकम वेरी हॉट इन अक्टूबर, पीरियड ऑफ हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड अक्टूबर हीट। अगर ये क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो लिंक टू द अक्टूबर, मंथ ऑफ अक्टूबर कैसा होता है, उसमें देख लो कैसा होता है, उससे रिलेट करके यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एरियाज ऑफ वेरी हाई रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में हाई रेनफॉल एरिया कौन सा होता है, मानेसरम, तो वो जरूर मेंशन करना है यहाँ पे, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एरियाज ऑफ हाई, लो एंड वेरी लो रेनफॉल इन इंडिया। अब यहाँ पे सिर्फ हाई पे शॉर्ट नोट लिखना था। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन द एरियाज ऑफ हाई, लो एंड वेरी लो। हाई, लो, हाई इज 400 सेंटीमीटर, लो इज 20 सेंटीमीटर एंड मोर, और हाई, लो एंड वेरी लो। वेरी लो इज 20 ऑलमोस्ट, और ये 20, 400 to 20 बीच का 60 बीच का आ जाएगा इसका, 420 मीडियम ऑलमोस्ट। मूविंग ऑन टू द 25th क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड पे शॉर्ट नोट लिखना है। 26, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड पे शॉर्ट नोट लिखना है। एंड लाइकवाइज 27, हाउ हिमालयस प्लेज अ वाइटल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ। हिमालयस क्या रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट कंडीशन में और इंडिया की क्लाइमेट कंडीशन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 28, राइट 3 फीचर्स ऑफ एडवांसिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून के कोई से भी 3 फीचर्स लिखने हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 फीचर्स ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून के फीचर्स लिखने हैं। अक्टूबर नवंबर में आता है, साउथ वेस्टर्न विंड्स होते हैं, यही सब मेंशन करना है। नेक्स्ट, व्हाट डज मुंबई, व्हाई डज मुंबई रिसीव मोर रेनफॉल इन रेनी सीजन। मुंबई ज़्यादा रेनफॉल क्यों रिसीव करता है, अगर उसकी देखोगे तो वो कोस्टल एरिया के पास लाई कर रहा है, उसके बिहाफ पे यू कैन राइट डाउन द आंसर। So that's all. We have studied 30 questions of 3 marks in this video. So that's all for this video. Thanks for watching the video. Do like, do share, and do subscribe to our channel. Till then, see you in the next video with new content.